ہماری جان لے لو یا ہماری جان ہو جاؤ۔ الفاتحة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رونق اسٹیج مقتدر علماء ملت اسلامیہ، ذوی الاحترام سامعین، پردہ نشین خواتین، عزیز بچوں، دور و دراز سے آئی ہوئی مہمانان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله الذي فضل سيدنا ومولانا محمدا على العالمين جميعا، وقامه يوم القيامة للمذنبين المتلوثين الخطائين الهالكين شفيعا، وعلى آله وصحابه بشيرا ونذيرا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ببرکت بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم، وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین المعین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ لائق مبارکباد ہے نظام مصطفیٰ کانفرنس کے جملہ اراکین، منتظمین، معاونین، جنہوں نے اپنی بے پناہ جد جہد اور قد و کاوش کے ساتھ آج کا یہ عظیم الشان پروگرام سجایا اور کامیابی کی آخری دہلیز تک پہنچایا۔ مولا تعالیٰ تمام لوگوں کی کاوشوں کو قبول فرما کر دارین کی سعادتوں سے مالا مال ہے۔ ان سے گزارش کی جاتی ہے کہ جینس کے پنڈال میں پال بچھا دیا جائے، جو پیچھے خالی ہے اس میں پال بچھا دیا جائے۔ خصوصیت یہ ساتھ مفکر اسلام
میرے عزیز دوست حضرت علامہ حضرت علامہ مفتی ظہور احمد مصباحی نعیمی، جن کی کاوشوں کا نتیجہ اور ثمرہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، مولا تعالیٰ حضرت کی کاوشوں کو قبول عطا فرمائے۔ حضرات، مجھے یہاں آ کر معلوم ہوا کہ گزشتہ شبی پروگرام تھا، آپ نے ہندوستان کے مقتدر علماء کرام کی زبانی نعت و منقبت و خطاب و نایاب سماعت کیے۔ اب عارف انور نعیمی کو تھوڑی دیر سماعت کیجیے اور اطمینان اور سکون کے ساتھ بیٹھ کے رہیے۔ آئیے سب سے پہلے زمیں والے، زما والے، مکی والے، مکا والے، لا مکا والے، شفاعتی لأہل القبائل لامتی کا مزدع جافزہ سنانے والے، یعنی انیس بے کسا وقار دو جہاں سرور کون و مکا مالک ایوں آ، یعنی حبیب الرحمن افضل الانسان جان ایمان، عالم کے سلطان خالق کا مہمان مخلوق کا میزبان، یعنی رسول ارشاد کی بارگاہ بے کس پناہ میں محبت کے ساتھ درود پاک کی تعلیم پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ کی سرزمین کوچ گر میں عارف انور نعیمی کی یہ پہلی حاضری ہے۔ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ نظام مصطفیٰ کانفرنس میں آئے ہو کہ مصطفیٰ کا نظام اپنے سینے میں بسا کر جاؤ، تاکہ آپ کا ویران دل آباد ہو جائے اور آپ کا ایمان ہرا بھرا ہو جائے۔ بس ایک گھنٹہ کا ٹائم مجھے دیجیے، انشاءاللہ مفتی ظہور احمد نعیمی کی جو منشا ہے، ان کا ارادہ ہے، میں کوشش کروں گا کہ اس طرف بھی آؤ اور آپ جس کام کے لیے جس ارادہ سے اپنے گھر سے چل کے آئے ہیں، آپ کو کما ہم کو اس کا فائدہ بھی پہنچ جائے۔ بڑے بھائی جناب مفکر اسلام جناب اشفاق صاحب کی دامت برکاتہ العالیہ والقدسیہ رونق اسٹیج ہے۔ شاعر ہندوستان جناب سنجر کلکتوی سے کافی دن کے بعد ملاقات ہوئی ہے، پورے آب و تاب اور شباب کے ساتھ ابھی رونق اسٹیج ہے۔ کچھ ہی دیر کے بعد آپ کو عمدہ سے عمدہ کلام سنائیں گے اور آپ حضرات موجود ہوں گے۔ آئیے ایک بار اور بارگاہ رسالت میں درود پاک کی تعلیم پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں زیادہ دیر آپ کے سامنے نہیں رہوں گا، زیادہ لمبی گفتگو نہیں ہوگی۔ ابھی کچھ دیر پہلے مجھے 2-3 الٹی ہو گئی ہے، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ زیادہ دیر گفتگو ہوگی، بس تھوڑی دیر سماعت کیجیے۔ بس چند اشعار کے ساتھ اپنی گفتگو شروع کر رہا ہوں کہ گنبد خضرا کے دامن کی ہوا مانگی ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ گنبد خضرا کے دامن کی ہوا مانگی ہے، ہم نے مرنے کی مدینے میں دعا مانگی ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ بولو نا بھائی، دعا نہیں مانگے ہو تو آج سے مانگ لینا کہ پروردگارہ مرنا تو ہے، مگر نالے میں، گٹر میں، گھر میں، مکان میں، صحرا میں نہیں، مصطفیٰ کے دیال بہار میں موت عطا فرما۔ گنبد خضرا کے دامن کی ہوا مانگی ہے، ہم نے مرنے کی مدینے میں دعا مانگی ہے۔ کسی نے زندگی تو کسی نے شہرت، ہم غریبوں نے مصطفیٰ کی گنبد خضرا کے دامن کی ہوا مانگی ہے، ہم غریبوں نے مدینے کی قضا مانگی ہے۔ اور یاد جب مدینے کی فضا آتی ہے، سانس لیتا ہوں تو جنت کی ہوا آتی ہے، سانس لیتا ہوں تو جنت کی ہوا آتی ہے۔ درود پاک پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا
یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات تقریر آپ نے سینکڑوں سنی ہوگی، مگر تقریر سننے کے بعد آپ اس پر غور و فکر نہیں کرتے ہیں، آپ سوچتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں۔ سیمانچل کا آج حال یہ ہے کہ ہر گاؤں میں، ہر محلہ میں، ہر شہر میں، ہر گلی میں، ہر مہینہ، ہر سال تین شب کا جلسہ سجایا جاتا ہے، بڑی سے بڑی کانفرنس سجائی جاتی ہے، مگر اس کا رزلٹ جب دیکھیں گے تو منفی طور پر، نیگیٹو طور پر ہماری نظر کے سامنے آتا ہے۔ حضرات آپ نے کبھی غور کیا کہ ایک جلسہ کو سجانے میں 50 سے 1.5 لاکھ کا پنڈال سجانا پڑتا ہے، علماء کو دعوت دینی پڑتی ہے، اس میں 2.5-3 لاکھ کا خرچہ ہے، مائک کا الگ خرچہ ہے، لائٹنگ کا الگ خرچہ ہے، انتظام انصرام میں تقریباً 30 سے 40 لوگ مسلسل 1 مہینہ تک محنت اور کاوش کرتے رہتے ہیں، لوگوں کے گلی گلی، لوگوں کے دروازے تک، گھروں تک جا کر حاضری دیتے ہیں، 10 20 25 50 100 روپے اکٹھا حاصل کر کے پھر 2-4 لاکھ کا اماؤنٹ ایک جگہ جمع کرتے ہیں اور خرچ کرتے وقت آسانی کے ساتھ خرچ کر لیتے ہیں۔ آپ جس سے 50 روپے لے کے آتے ہیں مدرسہ کے نام پر، آپ جس سے 20 روپے لے کے آتے ہیں مسجد کے نام پر، مگر آپ نے 50 اور 20 روپے لا کر پنڈال میں خرچ کر دیا، مائک کے انتظام میں خرچ کر دیا، لائٹنگ میں خرچ کر دیا، دینے والا مدرسہ کے نام پر دیا تھا، دینے والا مسجد کے نام پر دیا تھا، دینے والا اللہ رسول کے نام پر دیا تھا، تم نے پورا پیسہ ڈیکوریشن میں ختم کر دیا، تم نے پورا پیسہ لائٹنگ میں ختم کر دیا، تم نے پورا پیسہ مائک کے انتظام میں خرچ کر دیا۔ بتاؤ تم نے جس وعدہ کے ساتھ کلیکشن لیا تھا، وہ غریب دن بھر مزدوری کر کے 250 روپے کمانے کے بعد 100 روپے اپنی جیب سے نکالا تھا، کل حشر کے میدان میں اگر تمہارا دامن پکڑ کے کہے مولانا میں نے 100 روپے دیا تھا مصطفیٰ کے گھر کے لیے، بتا میرا وہ 100 روپے کہاں گیا؟ تو نہ کسی مولوی کے پاس جواب ہوگا، نہ کسی مقرر کے پاس جواب ہوگا، نہ کسی ذمہ دار کے پاس جواب ہوگا۔ بے شک سبحان اللہ، بے شک سمجھتے نہیں ہے اس بات کو، کلیکشن کر لیتے ہیں مگر خرچ کدھر کرتے ہیں اس کا کوئی حساب نہیں ہے۔ پسینہ چھوٹ جاتا ہے، دقتیں بہت آتی ہیں، دشواریاں بہت ہوتی ہے، پیسہ اکٹھا کرنا یہ مذاق نہیں ہے، یہ کوئی تماشا نہیں ہے، لوگوں کی جیب سے پیسہ نکالنا یہ بڑا مشکل کام ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ فلاں آدمی کنجوس ہے، 10 روپے خرچ نہیں کرتا، کیسے کرے گا؟ اس سے نکالو اس کی جیب سے 10 روپے۔ وہ کلا چاہیے، وہ ہنر چاہیے، وہ کیپیسٹی چاہیے، یہ سب نہیں کر پائیں گے، یہ ہمت کر پائیں گے تو مرد جواد حضرت اللہ حضرت علامہ مفتی ظہور احمد نعیمی مصباحی جیسے لوگ جو رات و دن کے چین و سکون و آرام کو بالائے طاق رکھ کے مصطفیٰ کے نظام کو عام کرنے کے لیے نظام مصطفیٰ کانفرنس منعقد کیے ہیں، اور جامعہ نظامیہ ظہور العلوم آپ کے ہی علاقے میں کھول کر قوم کے غریب بچوں کو علم جیسی دولت اور علم جیسے ہتھیار دے کر قوم کے سامنے مرد مجاہد بنا کر اسلام کا سپاہی بنا کر پیش کر رہے ہیں کہ دین اسلام پر، مذہب اسلام پر، دھرم اسلام پر اگر تم کوئی وار کرنا چاہتے ہو تو ہمارے فوجی سرحد پر موجود ہے، اسلام پہ وار نہیں، اسلام کے سپاہیوں کے سینے پہ وار ہوگا، مصطفیٰ کے دین پر وار نہیں ہونے دے گا۔ یہ جامعہ نظامیہ کا فارغ ہے، مصطفیٰ کا نظام گھر گھر میں پہنچائے گا، مصطفیٰ کا نظام صاف آپ کو حضرت کا دینا ہے، تب یہ کام ہو پائے گا۔ درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ پیغمبر اسلام ہے، مکہ کی سرزمین ہے، صبح کا وقت ہے، میرے مصطفیٰ
मुस्तफा अपने घर से निकलते हैं तबलीग इस्लाम के लिए, इस्लाम के प्रचार के लिए, दीन इस्लाम को फैलाने के लिए, फरोग इस्लाम के लिए आज मुस्तफा निकले हैं। सुबह से लेकर शाम तक लोगों के दरवाजे पे पहुंचे हैं, गली पे पहुंचे हैं, नुक्कड़ पे पहुंचे हैं, चौराहे पे पहुंचे हैं, शहर में पहुंचे हैं, बाजार में पहुंचे हैं। जवानों को अलग समझा रहे हैं, बच्चों को अलग समझा रहे हैं, बूढ़ों को अलग ज्ञान दे रहे हैं। मगर मक्का की सरजमीन में कोई एक ऐसा बंदा भी नजर नहीं आता है, शहर मक्का में कोई ऐसा व्यक्ति नजर नहीं आता है जो मुस्तफा के पैगाम को कबूल कर ले, जो मुस्तफा के निजाम को कबूल कर ले, जो मुस्तफा की दावत को कबूल कर ले। मुस्तफा जाने रहमत है, सुबह से लेकर शाम तक फरोग इस्लाम के लिए, तबलीग इस्लाम के लिए, इशाअत इस्लाम के लिए मशक्कत पे मशक्कत किए जा रहे हैं, दुश्वारियों को बर्दाश्त किए जा रहे हैं, तबलीग इस्लाम के लिए तमाम कठिनाइयों को बर्दाश्त किए जा रहे हैं। मगर शहर मक्का का एक भी फर्ज नहीं है, ऐसा नजर नहीं आता है कि मुस्तफा की दावत पर लब्बे कहते हुए दामन इस्लाम से वाबस्ता हो जाए। मुस्तफा जाने रहमत के दिल में कल्बे मुबारक में गिरा गुजरता है। शाम का वक्त है, मेरा पैगंबर वापस आता है और उम्मे हानी के घर रात के समय आराम के लिए चादर तान कर सो जाते हैं। अल्लाह अकबर, वो कैसा दिन गुजरा था, ये कैसी रात आ रही है। पैगंबर इस्लाम सुबह से लेकर शाम तक तबलीग इस्लाम कर रहे हैं, मानने वाला एक भी नहीं है। पैगंबर इस्लाम के कल्बे अतहर में गिरा गुजरा है, मेरा मुस्तफा आराम कर रहे हैं। पैगंबर इस्लाम चादर ताने हुए सो रहे हैं। परवरदिगार आलम का हुक्म होता है, ऐ जिब्राइल, ऐ जिब्राइल तुम कहाँ हो? जिब्राइल अर्ज करता है, मौला परवरदिगारा सिदरा के पास हूँ। मेरा रब फरमाता है, जिब्राइल जन्नत चला जा, 70,000 फरिश्तों को साथ ले ले और मेरे पैगंबर की चौखट पे हाजिरी दे दे। मेरे मुस्तफा से कह दे, इन्नल्लाह यश्ताक़ु इलैक, ऐ पैगंबर रब आपकी मुलाकात का मुश्ताक है। परवरदिगार आलम आपको मेहमान बना के बुलाना चाहता है। परवरदिगार आलम आपको अपनी बारगाह में बुलाता है। अब जिब्रील अमी है, सिदरा से जन्नत जाते हैं, जन्नत देख रहे हैं कि जन्नत तो जन्नत ही है, जन्नत लाजवाब है, तस्वीर में जन्नत को कोई ला नहीं सकता। मगर आज जन्नत का निजाम ही कुछ और है, जन्नत की नूरानियत कुछ और है, जन्नत का हुस्न जमाल ही कुछ और है। मुस्तफा आने वाले हैं, जन्नत सजाई दी गई है। मुस्तफा आने वाले हैं, लाइटिंग बढ़ा दी गई है। मुस्तफा आने वाले हैं, चारों तरफ नूर ही नूर है। मुस्तफा आने वाले हैं, चारों तरफ उजाला ही उजाला है। मुस्तफा आने वाले हैं, चारों तरफ रोशनी ही रोशनी है। हजरत जिब्रील अमी 70,000 मलाइका को लेकर बारगाहे रिसालत में पहुंचते हैं। क्या देखते हैं? मुस्तफा आराम तो कर रहे हैं मगर दरवाजा बंद है। पैगंबर इस्लाम की बारगाह में जब हजरत जिब्रील अमी पहुंचते हैं, दरवाजा बंद है। अब जिब्रील सोचने में पड़ गई, दरवाजा की कुंडी खटखटाऊं, अंदर जाऊं, बारगाहे रिसालत में कैसे पैगाम पहुंचाऊं। जिब्रील इसी कश्मकश में थे। रब की तरफ से ऑर्डर होता है, मेरा रब फरमाता है, ऐ जिब्रील छत को फाड़ दो। छत को फाड़ने के बाद अंदर दाखिल हो जाओ। मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में जिब्रील अमी छत के जरिए से कमरा के अंदर दाखिल होता है। अब जिब्रील देख रहे हैं पैगंबर इस्लाम आराम फरमा है, रसूलों का ताजदार सोए हुए हैं। जिब्रील सोचते हैं, जगाओ तो जगाओ कैसे? पैगंबर इस्लाम का पैर दबाओ, पैगंबर इस्लाम का हाथ दबाओ, मुस्तफा को आवाज दो, जगाओ तो जगाओ कैसे? रब का हुक्म होता है, जिब्रील अपने काफूर के होठ को मेरे पैगंबर के तलवे से लगा लो और मुस्तफा के कदम नाज को चूमो। जो ही मुस्तफा जाने रहमत को ठंडक का एहसास होगा, मेरे मुस्तफा की आंखों को खोल देंगे। जिब्रील अमी ने मुस्तफा जाने रहमत के कदम नाज को अपने होठों से लगाकर बोसा लेना शुरू कर दिया, चूमना शुरू कर दिया। मैंने जिब्रील से आलम तसव्वुर में पूछा, हे जिब्रील जब तुमने अपने लम्हाए मुबारक से कौनैन के ताजदार आमना के दुर्रे यतीम अब्दुल्ला के लख्ते जिगर के कदम नाज को चूमा था तो तुम्हें कैसा लग रहा था? तो जिब्रील अमी कहते हैं, न जन्नत की पहाड़ों में देखा, न जन्नत की पहाड़ों में देखा, मजा जो मुस्तफा के तक। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, निज़ामे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, जामिया निज़ामुद्दीन ज़हरुल उलूम, नारे तकबीर, नारे
سبحان اللہ سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت امام عشق محبت یکتائے ویزدار علم ادب کے شہریار سرکار امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کی زبانی اگر سنیں گے تو جبریل امین کا قول عشق کا امام یوں نقل کرتا ہے, یہی بولے سگرا والے چمنے جہاں کے تھالے سبھی ہم نے چھان ڈالے, تیرے پائے کا نہ پایا تجھے یک نے یک بنایا, تجھے یک نے یک بنایا. یہ مصطفیٰ کا مقام ہے. جبریل امین آج قدم ناز کو چوم رہے ہیں اور تمام فرشتوں کا سردار طائر سدرا بلبل سدرا روح الامین جبریل امین مصطفیٰ کے قدم ناز کو چوم کر دنیا والوں کو بتانا چاہتے ہیں, اے دنیا والوں تمام فرشتوں کا سردار ہو کر میں مصطفیٰ کے قدموں تک پہنچا ہوں اور تم مصطفیٰ کے نقوش قدم تک پہنچ جاؤ گے تو کامیابی کی تمام دہلیز تک تم پہنچ جاؤ گے. مصطفیٰ کے قدم راز تک پہنچنا یہ جبریل کا کام ہے, مصطفیٰ کے نقش قدم تک پہنچنا یہ امتی کا کام ہے. مصطفیٰ کی امت مصطفیٰ کے نقش قدم تک پہنچ جاؤ. مصطفیٰ جان رحمت کے نقوش قدم کو اپنے دامن کرم میں سمیٹ لو. مصطفیٰ جان رحمت کے اسوائے حسنہ کو اپنے دامن میں لے لو. کامیابی کہیں اور نہیں ہے, کامیابی ادھر ہے. کامیابی کہیں اور نہیں ہے, کامیابی نظام مصطفیٰ میں ہے. کامیابی کہیں اور نہیں ملے گی, کامیابی نظام مصطفیٰ میں پنہا ہے. نظام مصطفیٰ میں کامیابی چھپی ہوئی ہے, اس لیے نظام مصطفیٰ کو اپناؤ. نظام مصطفیٰ سے کانٹیکٹ کر لو, نظام مصطفیٰ سے سمپرک مضبوط کر لو, کامیابی اسی میں چھپی ہوئی ہے. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ. اب پیغمبر اسلام حضرت ام ہانی کے گھر سے نکلتے ہیں, کعبۃ اللہ جاتے ہیں. پیغمبر اسلام کے سینے مبارک کو چاک کیا جاتا ہے, سینہ کو پھاڑا جاتا ہے. پیغمبر اسلام کے دل مبارک کو, قلب مبارک کو, ہاتھ کو, دل کو, ہردے کو نکالا جاتا ہے, ایک تشت پہ رکھا جاتا ہے, دھویا جاتا ہے. کچھ دیر کے بعد پیغمبر اسلام کے دل مبارک کو, پیغمبر اسلام کے قلب مبارک کو سینے میں رکھ دیا جاتا ہے. پھر سینہ کو ملا دیا جاتا ہے. کوئی داغ نہیں ہے, کوئی نشان نہیں ہے. اب ایمانداری سے بتانا, میں کسی مسلک اور فرقے کی بات نہیں کرتا, عارف النعیم حق بات بولتا ہے. اے لوگوں تم اپنے پیغمبر کو کیسا سمجھو گے؟ پیغمبر اسلام معراج کی رات میں جب ام ہانی کے گھر سے احاطہ کعبہ میں حرم مبارک میں پہنچے تھے کہ میرے پیغمبر کے سینے کو چاک کیا گیا تھا, دل کو نکالا گیا تھا, دشت پہ رکھ کے دھویا گیا تھا. جو شخص دنیا میں چاہے جس مسلک کا ہو, جس فرقے کا ہو, جس دھرم کا ماننے والا ہو, مصطفیٰ کو اپنی طرح سمجھتا ہے. اس کے سینے پر وار کرو اور بولو کہ اپنا دل نکالو, ایک بار میں دھو کر سینے پہ رکھ دوں گا, بچ گئے تو سمجھ جاؤں گا مصطفیٰ کی طرف. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. دل نکال کے ایک بار دھوؤں گا, بچ گئے تو سمجھ جاؤں گا مصطفیٰ کی طرح ہو, نہیں بچے تو جھوٹا ہو. یہ پیغمبر اسلام ہے, پیغمبر اسلام کی عظمت, پیغمبر اسلام کی حرمت, پیغمبر اسلام کی شان کو سمجھو. مصطفیٰ جان رحمت کے قلب مبارک کو نکال کر دھویا گیا, پھر سینے کے اندر داخل کیا گیا. نہ سینہ میں کوئی داغ ہے نہ نشان ہے. اے لوگوں تم اس پیغمبر کی امت ہو, تم اس مصطفیٰ کی امت ہو. اپنے نبی کی عظمت کو سمجھو, اپنے نبی کے مقام اور مرتبہ کو سمجھو, اپنے نبی کی حرمت کو سمجھو, اپنے نبی کے رسپیکٹ کرو. جو انسان زمین پر مصطفیٰ کی رسپیکٹ نہیں کرتا, کائنات میں اس کو کہیں رسپیکٹ نہیں ملے گی. اس لیے اگر دنیا میں عزت و وقار چاہتے ہو تو مصطفیٰ جان رحمت کی غلامی میں جینے کا طریقہ سیکھو. مصطفیٰ کی غلامی میں جیو, پروردگار عالم اپنے فضل و کرم سے دنیا میں عزتوں کی بہار عطا فرمائے گا. معراج کے ٹاپک پر میں لمبی چوڑی گفتگو کرنے نہیں چاہتا, میں بتانا آپ کو یہ چاہتا ہوں کہ مسجد حرام سے جب میرا مصطفیٰ بیت المقدس کے لیے پہنچے ہیں, فلسطین پہنچے ہیں, یروشلم پہنچے ہیں, آج وہ مسجد اقصیٰ جو مسلمانوں کے قبضہ سے نکال کر یہودی اپنے قبضہ میں لے رہے ہیں, آج زمین کے اندر سے کھدائی چل رہی ہے. وہ یروشلم جسے فاروق اعظم نے فتح کیا تھا, وہ یروشلم جسے صلاح الدین ایوبی نے فتح کیا تھا, وہ یروشلم, وہ مسجد
मस्जिद अक्सा जो मुसलमानों का किबला अव्वल है। ऐ मुसलमानों, आज हम गाँव समाज में बसते हैं, देहात में रहते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, हमें पता नहीं है कि इस्लाम को टारगेट करके रोजाना इस्लाम के खिलाफ न जाने कितनी साजिशें की जा रही है। आज मजहब इस्लाम और इस्लाम के तमाम कानून को बदलने के लिए लोग शब रोज मेहनतें करते हैं, कोशिश करते हैं, नई नई साजिशें करते हैं। मगर मुसलमानों सुनो, आज भी पूरी दुनिया में तकरीबन 50 ममालिक ऐसे हैं जिस पर मुस्लिम हुक्मरान है, जिस पर मुस्लिम बादशाह है। यरूशलेम पर रोजाना अटैक हो रहा है, फिलिस्तीन के बेगुनाह मुसलमानों पर बमबारी हो रही है। आज लोग सऊदिया बहुत चिल्लाते हैं, आज लोग सऊदी के बहुत दीवाने नजर आते हैं, आज लोग शाह सलमान के बहुत दीवाने नजर आते हैं। मगर इन्हें पता नहीं है कि पैगंबर इस्लाम के कदम नाज की बरकत से खुदा ने अरब में सोना का खजाना पैदा फरमाया है। मुस्तफा जाने रहमत के कदम नाज की बरकत से खुदा ने सऊदी वालों को पेट्रोल का खजाना अता किया है, डीजल का कुआं अता किया है। अरे अगर मेरे मुस्तफा ना होते तो अरब के बिट्टियों को कोई पूछने वाला नहीं होता, अरब के जंगलियों को कोई पूछने वाला नहीं होता। ये तो 12 रबीउल नूर को आमना का लाल क्या मक्का की सरजमीन में तशरीफ लाए, पूरी सुन्नी जमीन में मक्का को आला और अफजल कर दिया, शहर मक्का को आला और अफजल कर दिया, हरमैन को अफजल और आला कर दिया। ये मुस्तफा के कदम नाज की बरकत है कि जिन बिट्टियों को लोग पूछते नहीं थे, मुस्तफा ने कदम नाज क्या रखा, दुनिया का इमाम बना दिया, दुनिया का रहनुमा बना दिया, दुनिया का कायद बना दिया। ये मुस्तफा के कदम नाज की बरकत से दौलतों को हासिल करने वाले आज तरफ और उनकी बेटियों की इस्मत को लूटने के लिए करोड़ों का खजाना लुटा देते हैं। मगर फिलिस्तीन के बेगुनाह मुसलमान मुस्तफा जाने रहमत पर दुरूद व सलाम पढ़ने वालों पर रोजाना इजराइल बमबारी कर रहे हैं, रोजाना इजराइल अटैक करते हैं, मगर इसे साफ सुन गया है, अपनी जबान नहीं खोलता है। ऐ लोगों सुनो, वही शख्स दुनिया में हमारा इमाम है, वही शख्स दुनिया में हमारा रहबर है, वही शख्स दुनिया में हमारा कायद है जो निज़ाम मुस्तफा की पासदारी करता है, जो निज़ाम मुस्तफा को कायम करना चाहता है, जो दुनिया में मुस्तफा के निज़ाम को कायम करना चाहता है। वो पूरी दुनिया में मुसलमान का कायद और रहनुमा है, जो मुस्तफा के निज़ाम की बात नहीं करता, चाहे वो जिस मुल्क का भी हुक्मरा हो, वो मुस्तफा का नहीं है, और जो मुस्तफा का नहीं है वो हमारा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। समझना कि सऊदी अरबिया में काबा में उनकी हुकूमत है, मक्का में उनकी हुकूमत है, मदीना में उनकी हुकूमत है, तो वही हक पर है। कुछ हुज्जाजे किराम जाते हैं हज करने के बाद आके कहते हजरत वह सारे लोग तो वही हैं, सारी जगहों पे उन्हीं की हुकूमत है, सब कुछ उन्हीं का है। तो ऐसा कभी हो सकता है क्या? काबा में खुदा अपने घर में दूसरे का मालिक बना दे, मुस्तफा अपनी चौखट में अपने गुस्ताखों को रखे। हजरात ये इतिहास की बात है, ये तारीख की बात है। जब मरवान की हुकूमत आई थी, जब यजीद की हुकूमत आई थी, तो शहर मदीना में 3 दिन तक गोलाबारी किए थे। मुस्तफा जाने रहमत की मस्जिद नबवी में 3 दिन तक आजानें रही हुई थी, घोड़ों को बांध दिया गया था। वो दौर और इतिहास वो तारीख का ये वक्त नहीं है बताने का, मगर हर दौर में और जमाने में कुछ साल ऐसे भी गुजरे हैं कि खाने काबा से हजरे अस्वद गायब है, मक्का में गैर मुस्लिमों का कब्जा है, मदीना में गुस्ताखाने रसूल का कब्जा है। ये मत समझना कि किसी मुल्क का हुक्मरान हो जाए तो वही इस्लाम का कायद बन जाएगा, वही इस्लाम का रहनुमा बन जाएगा, वही इस्लाम का रहबर बन जाएगा। ऐ लोगों, अर्ज में ये कर रहा था कि मुस्तफा जाने रहमत मस्जिद हराम से जब मस्जिद अक्सा पहुंचे हैं, आज मस्जिद अक्सा का जवाब नहीं है। मस्जिद अक्सा बेमिसाल है, जहाँ कमोबेश 1,24,000 अंबिया व मुरसलीन पीछे सब बनकर खड़े हैं, आगे इमामत की जगह खाली पड़ी है। मुसल्लाए इमामत पर कौनैन का ताजदार इमामुल अंबिया खातमुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह तशरीफ ले जा रहे हैं। आए मस्जिद अक्सा, तुम्हारी किस्मत को करोड़ों सलाम। आज इमाम भी लाजवाब है, मुक्तदी भी लाजवाब है। मस्जिद अक्सा के एक पिलर से ताइर सिदरा, बुलबुल सिदरा, जिब्रील अमी बुरा को बांध देते हैं। आज रूए जमीन पर पहली मर्तबा एक शख्स
की नमाज भी लाजवाब है, इमाम भी लाजवाब है, मुक्तदी भी लाजवाब है, मुअज्जिन भी लाजवाब है, आजान देने वाला तमाम फरिश्तों का इमाम और सरदार है, नमाज पढ़ाने वाला रसूलों का ताजदार है। जिब्रील अमीन आजान देते हैं, मेरे मुस्तफा नमाज अदा करते हैं, तमाम अंबिया और मुरसलीन पीछे नमाज अदा करते हैं। पैगंबर इस्लाम मस्जिद अक्सा में नमाज अदा करने के बाद आसमान की तरफ, पहले आसमान, दूसरे आसमान, तीसरे आसमान, सातों आसमान में पहुंचते हैं। जब दरवाजा पे पहुंचते हैं तो हजरत जिब्रील अमीन दरवाजा खोलने के लिए बोलते हैं। ऊपर से आवाज आती है, मन मानता तुम कौन हो? हजरत जिब्रील कहते हैं मैं जिब्रील हूँ। तो पूछा जाता है अकेले आए हो या कोई साथ में आया है? कहा अकेले नहीं आया, कौनैन का ताजदार आया है, रसूलों का इमाम आया है, शहनशाह ज़ी वक़ार आया है। दरवाजा खोल दिया जाता है, पैगंबर इस्लाम आगे चले जाते हैं, फरिश्ते सलाम अकीदत पेश करते हैं, दुरूद मोहब्बत पेश करते हैं। हजरात ये मुख्तसर में आपको मैं बताता चलूं, पैगंबर इस्लाम सातों आसमान होते हुए जब सिदरा पहुंचते हैं तो सिदरा पहुंचने के बाद जिब्रील अमीन ठहर जाते हैं, जिब्रील अमीन रुक जाते हैं। पैगंबर इस्लाम आगे चलते हैं, देखा जिब्रील ठहर गया है, जिब्रील रुक गया है। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं जिब्रील आगे क्यों नहीं जाते? तो शेख शरफुद्दीन शादी की ज़बानी जिब्रील अमीन अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह अगर यकसरे मुझे बरतर परम फरोगे तजल्ला बसोजत परम, अगर एक बाल के बराबर भी मैं आगे बढ़ जाऊं तो तजल्ली के नूर से मेरे पर जल के राख हो जाएंगे। ऐ जिब्रील क्या तुमने सोचा नहीं था कि जाने के लिए मुस्तफा कह रहा है, मुस्तफा के साथ में जा रहा हो? हजरात आप किसी को अगर अपने साथ ले जाएंगे तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उसकी जान को कोई खतरा ना हो, माल को कोई खतरा ना हो। आप अपनी जिम्मेदारी में किसी को ले जाएंगे तो सारी चीजों की हिफाजत करना ये आपकी जिम्मेदारी बन जाती है। बेशक जिब्रील अमीन ने उस वक्त सोचा नहीं था, ले जाने वाले मुस्तफा है, बुलाने वाले मुस्तफा है। जिब्रील को उस वक्त अपनी हद का पता था, जिब्रील को उस वक्त अपनी ताकत का अंदाज था। वो अपनी ताकत के हिसाब से कह रहे थे कि या रसूल अल्लाह एक बाल के बराबर आगे नहीं जा सकता। उस वक्त जिब्रील को यह पता नहीं था कि जिब्रील जहां तुम्हारी ताकत जवाब देती है वहीं से मुस्तफा की ताकत शुरू हो जाती है, जहां से तुम्हारा पावर खत्म होता है वहीं से मुस्तफा का पावर शुरू हो जाता है। जिब्रील ने अपने पावर का इस्तेमाल किया तो सिदरा तलक जाकर रुक गए। अगर जिब्रील अमीन मुस्तफा के पावर का सहारा लेते तो सिदरा से भी आगे जिब्रील जा सकते थे। अमीन ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह एक बाल के बराबर भी आगे नहीं जा सकता। अब मेरे मुस्तफा फरमाते हैं जिब्रील मुझे एक बात याद आ रही है। जिब्रील ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह फरमाइए क्या बात है? मेरे मुस्तफा मुस्कुरा के फरमाते हैं जिब्रील नारे नमरूद में जब नमरूद ने आग जलाया था, मेरे बाप इब्राहिम खलीलुल्लाह को जब नारे नमरूद में डाला जा रहा था तो जिब्रील तू ही था जो मेरे अब्बा इब्राहिम खलीलुल्लाह से कहा था ऐ इब्राहिम नमरूद की आग में तुम जा रहे हो, शोले फड़क रहे हैं, कुछ ही देर में जलकर खाक हो जाओगे। बताओ कोई हाजत है तो बोल दो, कोई जरूरत है तो बोल दो, मैं वहां पहुंच सकता हूं जहां कोई नहीं पहुंच सकता। इतनी जल्दी पहुंच सकता हूं जितनी जल्दी कोई नहीं पहुंच सकता। तो इब्राहिम खलीलुल्लाह ने कहा था आग में पड़ता है उसका खलील जानता है वो मेरा रब्बे जलील। मेरे बाप ने तो तुम्हें पैगाम नहीं दिया था मगर तुमने मेरे बाप से कहा था इब्राहिम मैं वहां पहुंच सकता हूं जहां कोई नहीं पहुंच सकता। जिब्रील आज उसी का बेटा वहां पहुंच रहा है जहां तू नहीं पहुंच सकता। जिब्रील पता तेरा कोई पैगाम है, तेरा कोई मैसेज है, तेरा कोई संदेश है तो बता मैं वहां पहुंचा दूंगा। तो जिब्रील अमीन ने दस्त बस्ता अर्ज किया था या रसूल अल्लाह पैगाम कुछ नहीं है बस एक अरीजा है, कबूल फरमा ले तो बेहतर है। मेरे मुस्तफा ने कहा जिब्रील ये मुस्तफा की चौखट है, ये मुस्तफा की बारगाह है, यहाँ से कोई सवाली खाली नहीं जाता है, कोई सवाली महरूम नहीं जाता है। बोल क्या अरीजा है? जिब्रील ने अर्ज किया खोज करके सुन्नी जन्नती मुसलमानों अपने मकाम और मर्तबा को पहचानो। तमाम फरिश्तों का सरदार है, रूहुल अमी है, ताइर सिदरा है, जिब्रील अमी है। अर्ज करता है या रसूल अल्लाह
या हबीब अल्लाह, कल हश्र का दिन होगा, मैदान महशर होगा, बेकरारी बेचैनी होगी, परेशानी के माहौल में लोग तड़पते होंगे, बिलखते होंगे, बेचैन बेकरार रहते होंगे। उसी में रब की तरफ से पुल सिरात लगाई जाएगी, पुल सिरात से आपके गुनहगार उम्मती का गुजर होगा। या रसूल अल्लाह, जिब्रील की तमन्ना ये है कि अपने नूरानी पर को पुल सिरात पे बिछा दे। मेरे मुस्तफा ने इस अरीज़ा को कबूल कर लिया। शराबियों, ज़नाकारों, बदकारों, बेनमाजियों, सूदखोरों, अपने मकाम और मर्तबा को पहचानो कि तुम जिब्रील अमी के पर अपना कदम कैसे रखोगे। गुनाहों से ये खाक, गुनाहों से आलूद, ये कदम तुम कैसे जिब्रील के पाक पर पे रखोगे। तुमने कभी सोचा नहीं था कि तुम जैसे लोगों के लिए, हम जैसे लोगों के निज़ाम मुस्तफा कॉन्फ्रेंस उलमाए अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना माहिर जमा नूरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बताओ, जब पुल सिरात के किनारे पर कौनैन का ताजदार ये फरमाते होंगे, अल्लाहुम्मा रब्बे सल्लिम उम्मती, अल्लाहुम्मा रब्बे सल्लिम उम्मती, ए अल्लाह मेरी उम्मत को सलामती से गुजार दे। और जिब्रील अपने पर को बिछाए होंगे। सूदखोरों, बताओ, जब मुस्तफा की नजर से तुम्हारी नजर मिलेगी तो अपने मुस्तफा से नजर कैसे मिलाओगे, अपने पैगंबर से नजर कैसे मिलाओगे। आज नमाज से बहुत दूर हो, नमाज को पालाए पाक रख लिए हो, हलाल और हराम की तमीज नहीं है। जब मुस्तफा की नजर से नजर नजर मिलेगी तो बताओ तुम कैसे मुस्तफा के सामने जाओगे। कभी इसका भी ख्याल कर लो, थोड़ी देर के लिए सोच लो कि मुस्तफा जाने रहमत के सामने हम किस मुंह से हाजिरी देंगे, अपने रसूल की बारगाह में हम कैसे हाजिरी देंगे। अगर मेरे मुस्तफा ने पूछ लिया, ए उम्मती बता, तुम्हारे लिए रातों को मैं उठ उठ के रोया करता था। अरे हद ये है, उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका फरमाती है, तैयबा ताहिरा तारसा फरमाती है कि सारा मदीना सो जाता था, सारे लोग आराम करते थे, मैं भी सो जाया करती थी, मगर मेरे मुस्तफा इस तरह से उठकर रातों को कयाम फरमाते थे। लंबा कयाम, लंबा रुकू करने के बाद सजदा करते थे, लंबा सजदा के बाद जब मुस्तफा बैठ जाते थे, रब की बारगाह में दस्त दराज करते थे, रब की बारगाह में एक ही दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा रब्बी हबली उम्मती, अल्लाहुम्मा रब्बी हबली उम्मती। हे अल्लाह तू कहार है, हे अल्लाह तू जब्बार है, तेरे कहरे जबर से कोई बचने वाला नहीं है। ए मेरा परवरदिगार, अगर तू पकड़ने चाहे तो जर्रा जर्रा का हिसाब लेगा, कतरा कतरा का हिसाब लेगा। तेरे कहरे जबर से बचने वाला कोई नहीं है। मेरा रब, मैं तेरी बारगाह में दस्ते दराज तलब करता हूँ, उम्मत का मामला मेरे सुपुर्द कर दे, उम्मत का मामला मेरे सुपुर्द कर दे, उम्मत को मेरे हवाले कर दे। मुस्तफा जानते थे कि उम्मत गुनहगार होगी, रब कहारे जब्बार है, उसके कहरे जबर से उम्मत बच नहीं सकती है। इसलिए मुस्तफा ने उम्मत को अपने हवाले मांगा है, इसलिए मुस्तफा ने उम्मत को अपने हवाले किया है। रब की बारगाह में मुस्तफा यही दुआ किया करते थे, अल्लाहुम्मा रब्बी हबली उम्मती, अल्लाहुम्मा रब्बी हबली उम्मती। ऐ अल्लाह, उम्मत को मेरे हवाले कर दे, उम्मत का मामला मेरे सुपुर्द कर दे। उम्मत गुनहगार है, सियाकार है, बदकार है, जो भी है मेरे अल्लाह, उम्मत को मुझे दे दे, उम्मत का मामला मेरे हाथ में दे दे। अल्लाहु अकबर। हदीस पाक में आया है, रब ने मुस्तफा की इस दुआ को इस अंदाज में कबूल किया है, जब हश्र का मैदान होगा, महशर कायम होगा, मुस्तफा जाने रहमत पुल सिरात के किनारे पे खड़े होंगे और रब्बे सल्लिम उम्मती, रब्बे सल्लिम उम्मती कहते रहेंगे। मुस्तफा जाने रहमत की दुआओं की बरकत से उम्मती गुजरते होंगे। फिर आगे जाकर मीज़ान अमल के सामने रब फरमाएगा, अल्लाहुम्मा रब्बी हबली उम्मती, अल्लाहुम्मा रब्बी हबली उम्मती। हे अल्लाह, मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। तो रब फरमाएगा, ए मुस्तफा, आज तुम जो मांगना है मुझसे मांग लो, तुम्हारा सवाल जाए नहीं जाएगा, जो भी मांगोगे दिया जाएगा। अब मुस्तफा का सिर्फ इशारा होगा, गुनहगारों की बख्शिश होती जाएगी। मुस्तफा का इशारा होगा, गुनाहों की बख्शिश होती जाएगी। अब अमल नहीं पूछा जाएगा,
काले करतूत नहीं दिखे जाएंगे। अब मुस्तफा की निगाहों की तरफ नजर होगी, मुस्तफा की नजर की तरफ नजर होगी, मुस्तफा निगाहें नबूवत को उठाएंगे। फरिश्ते पूछेंगे या रसूलल्लाह ये गुनहगारों की जमात है, क्या हुक्म है? मुस्तफा का इशारा होगा बख्शिश हो जाएगी, मुस्तफा का इशारा होगा छोड़ दिया जाएगा। और लोगों गुनाहों के दलदल में फंसे हुए हो, अपने दामन को गुनाहों से भर चुके हो, सोचो अपने आखिरत के बारे में, सोचो अपनी आखिरत के बारे में, सोचो अपने अंजाम के बारे में कि तुम किस मुस्तफा की उम्मत हो। वो शब रोज तुम्हारे लिए रोया करते थे। अरे हक तो ये है जब मुस्तफा जाने रहमत को तुर्बत अतहर पर लेटा दिया गया, पैगंबर इस्लाम को मजार अनवर पर लेटा दिया गया। हजरत कुसुम बिन अब्बास का बयान है कि पैगंबर इस्लाम को जब मजार मुबारक में कब्र अनवर में लेटा दिया गया तो लम्हाए मुबारक को हिलते हुए देखा गया। कान लगा के सुना, ध्यान से सुना तो आवाज आ रही थी, अल्लाहुम्मा रब्बी हबली उम्मती, अल्लाहुम्मा रब्बी हबली उम्मती। ए गुनहगार सिया करो पद करो। आज तुम मुस्तफा पर दुरूद सलाम पढ़ने कहने से कंजूसी करते हो, दुरूद सलाम पढ़ने कहने से बोलते हो बिदअत है। अरे वो मुस्तफा है जो कब्र अनवर पर जाकर भी तुम्हें याद करते हैं, अल्लाहुम्मा रब्बी हबली उम्मती, ए अल्लाह गुनहगार उम्मत को मेरे हवाले कर दे। तुम किस कैसा उम्मती हो, तुम किस मुंह से मुस्तफा का गुलाम अपने आप को कहते हो? वो मुस्तफा जिंदगी भर तुम्हें याद करते रहे और मुस्तफा को याद करने पर तुम बिदअत कहो, शिर्क कहो। उम्मती कहने का तुम हकदार नहीं रखते हो, उम्मती कहने के तुम हकदार नहीं हो। वो उम्मती है जब तक दुनिया में रहे तो रब हबली उम्मती कहे, तुर्बत अनवर में रहे तो रब हबली उम्मती कहे, महशर में जाए तो रब हबली उम्मती कहे। वो नबियों का ताजदार होकर, हमारा आका मौला दाता होकर हमको याद करो। हम कैसे नाहंजार उम्मती है कि अपने मुस्तफा को बेशक बेशक सुभान अल्लाह। समझो, गौर करो, लोगों के बहकावे में मत आओ, अपने नबी के दामन करम से वाबस्ता हो जाओ, अपने रसूल के दामन करम से वाबस्ता हो जाओ। बस एक आखिरी बात मैं बयान कर दूं, जब रब की बारगाह में मेरे मुस्तफा पहुंचे थे तो मेरा रब ने कहा था, ऐ पैगंबर आज मुझसे कुछ मांग ले, कुछ मुझसे मांग ले, सवाल कर ले। तो रब की बारगाह में पैगंबर इस्लाम ने कहा था, ऐ अल्लाह मैं अपनी उम्मत की बख्शिश मांगता हूँ। बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत उम्मत की बख्शिश मांगता हूँ। अगर वो खुदा मुस्तफा से कह रहा है कि पैगंबर आज जो मांग ले तो तुझे अता किया जाएगा, तो वो पैगंबर चाहता तो मांग लेता, परवरदिगारा करबला के मैदान में मेरी आल की कुर्बानी शहादत ना हो, मेरी आल पर कोई जुल्म जबर ना हो। वो पैगंबर चाहते तो दुनिया की शहनशाहत मांग सकते थे, दुनिया की शहनशाही मांग सकते थे, दुनिया की दौलत मांग सकते थे, माले सर मांग सकते थे, कायनात का खजाना मांग सकते थे। मगर रब ने जब फरमाया कि मुस्तफा मुझसे मांगो, क्या मांगना है, तो मुस्तफा जाने रहमत कहते हैं, परवरदिगारा अपनी उम्मत की बख्शिश मांगता हूँ। रब ने फिर दोबारा फरमाया, मुस्तफा कुछ मांगो। मुस्तफा जाने रहमत कहते हैं, मैं अपने उम्मत की बख्शिश मांगता हूँ। किताबों में आया है कि रब ने 700 मरतबा कहा, ऐ मेरे हबीब कुछ मांग। 700 मरतबा मेरे मुस्तफा ने एक ही जवाब दिया, परवरदिगारा अपनी उम्मत की बख्शिश मांगता हूँ। मेरे रब ने फरमाया, है मेरे महबूब अगर मैं चाहूँ तो आज की शब को पूरी उम्मत को बख्श दूंगा, आज की शब सारी उम्मत की खताओं को माफ कर दूंगा। मगर मेरे हबीब अगर आज की रात सारी उम्मत की बख्शिश हो जाए तो उम्मत को, मेरे बंदों को मेरी रहमत का पता चलेगा, तेरी रहमत का पता नहीं चलेगा। इसलिए मुस्तफा सारी उम्मत को बख्शूंगा, ये मेरा वादा है। मगर आज नहीं, जब हश्र कायम होगा मैदान महशर में और वही वो आखिरीन जमा होंगे, आदम से लेकर ईसा तक सारे नबियों की चौखट में उम्मती तरफते फिरकते चक्कर लगाते रहेंगे और सबकी ज़बानी एक ही जुमला सुनेंगे, नफ्सी नफ्सी इज़हबू इला गैरी। आज मुझे अपनी पड़ी है, तुम किसी और के पास जाओ। ऐ मुस्तफा लोग तुम्हारे मकाम और मर्तबा को दुनिया में कुछ समझ नहीं पाएंगे। जब मैं हश्र में मैदान महशर में और वही में आखिरीन को जमा करूंगा तो तेरी इज्जत और वकार का पता चलेगा, तेरी हुर्मत का पता चलेगा, तेरे मकाम और मर्तबा
तेरी रहमत का पता चलेगा। कबो बेश 1,24,000 अंबिया और मुरसलीन की चौखट से जब फुटकार दिए जाएंगे और तेरी बारगाह में आकर अर्ज करेंगे या रसूल अल्लाह हमारी शफाअत कीजिए, तो मेरे मुस्तफा फरमाएंगे अला लहा उम्मती मैं तेरे इंतजार तुम्हारी शफाअत के लिए मैं तैयार हूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत निज़ामे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, अज़मते मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान ऐ लोगों, मुस्तफा जाने रहमत के मकाम और मर्तबा को पहचानो। इसी मकाम और मर्तबा को पहचानने के लिए मुफ्ती ज़हूर अहमद नईमी मिसबाही ने जामिया निज़ामिया ज़हूरुल उलूम आपके गांव समाज में खोला। कौम के छोटे छोटे बच्चों को मुस्तफा जाने रहमत के निज़ाम से वाकिफ कराएंगे। लोगों के दिलों में मुस्तफा जाने रहमत की अजमत, हुर्मत, वक़ार और मर्तबा को बसाएंगे। इसी काम के लिए इन्होंने जामिया निज़ामिया की बुनियाद डाला है। परवरदिगार आलम इनकी इस तमन्ना को पूरी अता फरमाए और मौला ताला इसको इस्लाम का किला बनाए, इनकी खिदमत को कबूल अता फरमाए। एक बार सारे लोग कहें अल्लाहुम्मा आमीन। बारगाह रिसालत में दुरूद पाक पेश कर अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैंने शुरू में कहा था मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं 3-4 उल्टी कर चुका हूँ, मैं ज्यादा देर आपके सामने नहीं रह सकता। बस एक बात बयान करके गुफ्तगू खत्म कर रहा हूँ। आप में से कितने लोग हैं जिनकी तमन्ना और ख्वाहिश ये हो कि हम जन्नत में जाएंगे? जन्नत में कोई नहीं जाना चाहता? जी जाना चाहेंगे, बिल्कुल। जन्नत में नहीं जाना चाहते भाई? सारे लोग हाथ उठाए हैं। परवरदिगार आलम जितने लोग यहाँ हाथ उठाए हैं मुस्तफा जाने रहमत के सदके में तमाम लोगों को बेहिसाब जन्नत अता फरमाए। आमीन अल्लाह। हाथों को नीचे कर लीजिए। आप हाथों को बड़े बड़े लीडरों के लिए उठाते हैं, आज अहमद मुख्तार के नाम पे उठाए हैं। ऐ लोगों, जन्नत में जाने की तमन्ना सबकी है, ख्वाहिश सबकी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ जन्नत में पहले कौन जाएगा, बाद में कौन? बोलिए ना, मैं बता दूं? जी जी। अच्छा, आप लोग बाद में जन्नत में जाना चाहेंगे कि पहले जाना चाहेंगे? जोर से बोलिए। मैदान महशर में हश्र का दिन 50,000 साल का एक दिन होगा। अल्लाह। 50 साल दुनिया में रहते हो, 70 साल रहते हो, 50,000 साल का एक दिन होगा। बाद में जन्नत में जाओ तो कितना बुरा हाल होगा। इसलिए पहले जाने की कोशिश करनी है कि हम पहले जन्नत में चले जाएं ताकि हश्र की दुश्वारियों से बच जाए, महशर की दुश्वारियों से बच जाए। तो जितने लोग पहले जन्नत जाना चाहते हैं एक बार और दोनों हाथों को उठा के बोल दो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, हाथों को नीचे कर लीजिए। हजरात, महशर है, हश्र का मैदान है, कयामत का मैदान है। जन्नती जन्नत में जाने के लिए तैयार है। इतने में जन्नतियों के बीच में झगड़ा हो, आपस में झगड़ने लगेंगे। किस बात से? कि जन्नत पहले हम जाएंगे। वो कहेंगे नहीं जन्नत पहले हम जाएंगे, ये कहेंगे नहीं जन्नत पहले हम जाएंगे। 4 जमात के लोग होंगे, 4 ग्रुप के लोग होंगे, 4 कैटेगरी के लोग होंगे। सबकी ख्वाहिश ये होगी कि जन्नत पहले हम जाएं, सबकी तमन्ना ये होगी कि जन्नत सबसे पहले हम जाएं। अल्लाह अकबर। चारों ग्रुप के लोग आपस में झगड़ते होंगे। उन चारों ग्रुप में से एक ग्रुप के लोग को हुज्जाज कहते हैं। बोलिए सुभान अल्लाह। हाजियों की जमात होगी। ये हाजी साहब लोग कहेंगे नहीं पहले जन्नत हम जाएंगे। जी जी। दूसरे ग्रुप में शहदा की जमात होगी। ये शहदा की जमात शहीद हजरात कहेंगे जन्नत पहले हम जाएंगे। तीसरे ग्रुप में इन उलमा की जमात होगी। ये उलमा कहेंगे पहले जन्नत में हम जाएंगे। बेशक सुभान अल्लाह। चौथे ग्रुप में कौन होंगे ये बाद में बताएंगे। बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। चारों ग्रुप में जब झगड़ने चारों ग्रुप के लोग शुरू करेंगे, रब फरमाएगा हे मेरे फरिश्तों ये महशर है, ये दुनिया
नहीं है, ये झगड़ने की जगह नहीं है। बोल मेरे बंदों से किस बात पे झगड़ रहा है? फरिश्ते पूछेंगे लोगों क्यों झगड़ रहे हो, क्यों आपस में लड़ रहे हो? तो सब कहेंगे कि हमें जन्नत पहले जाना है। रब फरमाएगा कि हाजियों की जमात से पूछो, ए हाजियों तुम जन्नत पहले क्यों जाना चाहती हो? हाजियों से जब पूछा जाएगा, ए हाजी साहब बता जन्नत पहले क्यों जाना चाहता है? तो हाजी साहब कहेगा, फरिश्ता तुमको पता नहीं है, मैंने 3.5-4 लाख रुपए मेहनत और मजदूरी करके जमाया था। पूरा पैसा पूरा रुपया मैंने अल्लाह के नाम पे खर्च कर दिया। काबतुल्लाह की जियारत की, मिना पहुंचा, मुजदलफा पहुंचा, सफा व मरवा पे सही किया और मुस्तफा जाले रहमत की तुरबत अतहर की जियारत की। सुनहरी जाली का नजारा देखा, मुस्तफा की चौखट पे हाजिरी देकर मुस्तफा जाले रहमत लाखों सलाम या नबी सलाम अलैका कहा। जमजम पिया, मैंने बाल मुंडाया, मैंने सारे अरकान पूरे किए, गुनाहों से पाक और साफ होकर दुनिया से आया। आज जन्नत में मैं पहले जाना चाहता हूँ। फरमाएगा, ए फरिश्तों हाजी साहब से पूछो, ए हाजी तुमने जो हज किया था, हज का तरीका किसने बताया था? मीनार मुजदलिफा में जाने का नियम और कानून किसने बताया था? सफा और मरवा में सही किस तरह से करोगे, दौड़ किस तरह से लगाओगे, किसने बताया था? तब हाजी से पूछा जाएगा, ए हाजी हज की फजीलत तुम्हें किसने बताई थी? मक्का की हुर्मत का पता तुम्हें किसने दिया था? मुस्तफा की चौखट का मकाम और मर्तबा किसने बताया था? अदब किसने सिखाया था? हज का तरीका किसने बताया था? तो हाजी कहेगा, ए रब के फरिश्तों मैं तो कुछ नहीं जानता था, मगर हमारी मस्जिद का जो इमाम था उन्होंने मुझे सब कुछ सिखाया था। इसकी तरफ से हुक्म होगा, ए हाजी जिस इमाम के पीछे मक्का से वापस आने के बाद तुमने नमाजें अदा की थी, दुनिया में वो तुम्हारा नमाज में इमाम था, तो क्या आज जन्नत में तुम उसका इमाम बनना चाहते हो? हाजी शर्मा जाएगा, अपने कदम को पीछे हटा लेगा। रब फरमाएगा, ए फरिश्तों हाजियों की जमात को साइड करो, ये बाद में जन्नत जाएंगे, पहले शोहदा की जमात को आगे। बेशक सुभान अल्लाह। अब शहीद हजरात आएंगे, ऐ शोहदा तुम जन्नत पहले क्यों जानना चाहते हो? तो शोहदा की जमात कहेगी, परवरदिगारा इस्लाम को मिटाने के लिए पूरी दुनिया अपनी ताकत का इस्तेमाल कर रही थी, सब लोग अपनी जान को बचाकर अपने घर का दरवाजा बंद करके सोए हुए थे, मगर हम मैदान कारजार में उतरे थे। हमने अपने हाथ में तलवार लेकर इस्लाम की तबलीग और फरोग के लिए, इस्लाम की हिफाजत और सियानत के लिए अपने जिस्म का लहू दिया था, जिस्म के गरम गरम खून दिए थे, हमने अपनी जान का नजराना पेश किया था। हमने कभी सीने पे कभी बाजू पे खंजर खाया है, हमने तलवार से अपनी गला कटवाया है। परवरदिगार आलम आज मैं उसके बदले में जन्नत सबसे पहले जाना चाहता हूँ। रब फरमाएगा, ए शहीद बता तुमको शहादत की फजीलत किसने बताई थी कि तुम शहीद हो जाओगे तो बेहिसाब बख्श दिए जाओगे? शोहदा की जमात कहेगी, मौला ये उलमा से मैंने राबता किया था, उलमाए किराम ने बताया था कि जो खुदा की राह में शहीद हो जाता है वो मरता नहीं, वो जिंदा रहता है, वो जावेद हो जाता है, उसे जावेदानी जिंदगी मिल जाती है, वो जन्नत का हकदार हो जाता है। रब फरमाएगा, ए शोहदा जिस इमाम के जिस मौलवी के कहने पर तुमने अपनी जान का नजराना दिया था, मरना तो तुमको हर हाल में था, घर में मरते तो वो भी मौत होती, हॉस्पिटल में मरते वो भी मौत होती, नर्सिंग होम में मरते वो भी मौत होती। तुमने मेरे दीन के लिए सरहद पे मौत हासिल की है, मगर खुद से नहीं, किसी आलिम के बताने से, किसी इमाम के बताने से, किसी मौलवी और हाफिज और कारी के बताने से। बताओ आज क्या तुम उससे पहले जन्नत जाना चाहती हो? शोहदा की जमात शर्मा जाएगी, अर्ज करेगी, मौला तेरा जैसा हुक्म हो। रब फरमाएगा, ए शोहदा, ए फरिश्तों शोहदा की जमात को पीछे कर दो। एक तरफ हाजी की जमात खड़ी है, दूसरी तरफ शहीद की जमात खड़ी है। शोहदा एक साइड में है, हुज्जाज दूसरे साइड में है, बीच में उलमा की जमात है, नूरानी चेहरा है, चमकता दमकता चेहरा है। उलमा की जियारत कीजिए, नूरानी शक्ल सूरत को देखिए। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, मन ज़ारा आलिमन फकान नमा ज़ारनी, जो शख्स किसी आलिम रब्बानी की जियारत करता है गोया कि वो मुस्तफा की जियारत करता है। आलिम रब्बानी के चेहरा को देखना गोया कि मुस्तफा के रुखे अनवर को देखना है, मुस्तफा के रुखे अनवर की जियारत करना है। अब उलमाए किराम की जमात है, रब फरमाएगा, ए उलमा बता
तुम जन्नत में क्यों जाना चाहते हो? तो अर्ज करेगा मौला सारा गांव सोया हुआ रहता था, हम फजर के टाइम उठकर तेरे नाम को बुलंद किया करते थे, अल्लाह अकबर अल्लाह करते थे। सब लोग सोए हुए थे, काफिर थे, हम तेरी बारगाह में चौखट में लोगों को बुला बुला कर सजदा करवाया करते थे। ए परवरदिगारा, गांव का सारा आदमी तुझे भूल गया था, मगर मैं तुझे नहीं भूला था, मैं तुझे याद करता था, तेरे महबूब के दीन की प्रचार कर रहा था, तेरे मुस्तफा के दीन की तबलीग कर रहा था, कुरान के पैगाम को आम कर रहा था, तबलीग इस्लाम के लिए मैंने अपनी जिंदगी वक्फ कर दी थी। कभी भूखा पेट रहकर, कभी जली रोटी खाकर, कभी पतली दाल पीकर मैंने जिंदगी गुजारी है, मगर मैंने तेरे मुस्तफा के दीन को आम किया है, तेरे पैगाम को आम किया है, तेरे पैगाम को घर घर तक पहुंचाया है, तेरे नबी के मैसेज को घर घर तक पहुंचाया है। अल्लाह अकबर। जब उलमा की जमात इस तरह से बयान किए करते होंगे, इतने में रब की तरफ से एक ऑर्डर होगा, वो ऑर्डर बेइंतहाई लाजवाब होगा, बेमिसाल होगा। आप अगर चाहते हैं कि वो ऑर्डर सुने तो अपने दोनों हाथों को उठा के बोल दीजिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह। जितने लोग चाहते हैं कि हम उस ऑर्डर को सुनेंगे, रब क्या ऑर्डर फरमाएगा, एक मर्तबा और हाथों को उठा के बोल दीजिए या अल्लाह। या अल्लाह। ऑर्डर लाजवाब है, ऑर्डर बेमिसाल है, हुक्म लाजवाब है, हुक्म बेमिसाल है। सुनाऊंगा उसी बंदा को, सबको नहीं सुनाऊंगा। आज के इस जामिया निजामिया ज़हुरुल उलूम के लिए निजाम मुस्तफा कॉन्फ्रेंस में जो शख्स 5,000 रुपए अता करेगा, मैं उस शख्स को ये पैगाम सुना दूंगा। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 5,000 रुपए बहुत खूब। जामिया निजामिया ज़हुरुल उलूम के लिए 5,000 रुपए दीजिए, वो पैगाम सुनिए, लाजवाब पैगाम है, लाजवाब मैसेज है, बेमिसाल पैगाम है, पैगाम लाजवाब है। 5,000 रुपए देकर आपको तकलीफ हो सकती है, मगर जब पैगाम सुनेंगे तो दिल बाग बाग हो जाएगा, जब वो पैगाम सुनेंगे दिल खुश हो जाएगा, खुशी से आप उछल पड़ेंगे, कूद पड़ेंगे, मचल जाएंगे कि काश मैं 5 नहीं 10 दिया होता तो और अच्छा होता। आइए कोचवर और गिरदे नवा के सुन्नी जन्नती मुसलमानों को मैं दावत देता हूँ कि आओ आज मुफ्ती ज़हूर अहमद नईमी के शाना से शाना मिलाकर, कांधा से कांधा मिलाकर बता दो कि मुफ्ती साहब किबला आप अकेला नहीं है, तन्हा नहीं है, आपके पीछे पूरी टीम खड़ी है, आपके साथ पूरी जमात खड़ी है। हम आपको अकेले नहीं रहने देंगे। जामिया निजामिया मुस्तफा जाने रहमत के निजाम को आम करने के लिए जामिया निजामिया को बामे उरूज तक पहुंचाएंगे, कामयाबी की तहरीक तक पहुंचाएंगे। मेहनत मजदूरी करके हम अपनी रकम को जामिया निजामिया में लगाएंगे। बस कोई ऐसा एक मर्द कलंदर चाहिए, ऐसा जाबाज चाहिए, ऐसा नौजवान या मोमर चाहिए जो 5,000 रुपए जामिया निजामिया ज़हुरुल उलूम के लिए देकर इस पैगाम को सुने और सबसे पहले ये पैगाम सुनने का हकदार बन जाए। पैगाम बड़ा लाजवाब है, पैगाम बड़ा बेमिसाल